So, hello students, how are you? Everybody is fine and safe at home, doing the work, studying for the exam because your examinations are going to be held. That is your first unit test going to be held. So, please prepare yourself for that so that at the last moment there should be no problem for you. If you study from now, then it will be not problem for you. So, please do your work, complete your work. I know now copies are with us, but from book also you can learn because all the questions will come from inside the book, inside the chapters. So it is better that you read the chapter properly so that you can able to answer the questions, whatever questions are given to you. Okay, it's not necessary to having the book only because answers are also in the book. Okay, so you can study from the book and you can complete your work and you can revise your chapters. Whatever chapters has been done for your first unit test, that chapters you can revise and be prepared for your examination. So coming back to our subject, now today is the moral science class which we have to start. We have already started the chapter, we have already started the subject. First chapter I am going through, that is Born to Win. That chapter I have started. I have explained that chapter in the previous video, that how everybody in this world come here for something, some reason, and why they are born to win. Everybody wants to win in their life. And I have tell about a story about Anand and the Guru ashram, where everybody wants to get a participants on the ashram, but it's very difficult for every person to get inside because nobody was able to answer the question whatever the Guru was asking them. And one person, Anand, take that challenge that he will able to get the chance to get inside the ashram, and he prepared himself for that and he went there, but he failed. He confidently went there in front of Guru to face all the question, but he failed and learned the lesson that each and everything in the life is not so easy without knowing about himself. Okay, and I have given some homework also. To know about yourself, you have to write there is a question in that chapter, that who am I, you have to explain yourself. So if you have not done, please do it. It will be better that you should know about yourself. Okay, so moving forward to the chapter, self knowledge is something that we all want to have. Self knowledge, अपने बारे में जानना, ये ऐसा चीज़ है जो सब कोई जानना चाहता है, लेकिन ये सब कोई सोचता नहीं है. सब कोई जानना तो चाहता है लेकिन सोचते नहीं है. हम उसको सोचते नहीं हैं. हम सिर्फ जानना चाहते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं हैं. इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है. लेकिन उस फैले हुए सब्जेक्ट को जानने की कोशिश हम नहीं ही करते हैं. बहुत कम लोग ऐसा जानने की कोशिश करते हैं अपने बारे में. विच वी कैनॉट लर्न फ्रॉम बुक्स. बुक के ज़रिए हम कुछ नहीं जान पाएंगे अपने बारे में. कहीं किसी बुक में थोड़ी लिखा हुआ है कि कहीं भी लिखा हुआ है हम उसको जाके पढ़ लिए कि अपने बारे में क्या है. नहीं, किसी बुक में आपको अपने बारे में नहीं मिलेगा. आपके बारे में आपको जानना है तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना होगा. जब तक आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुनोगे तब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे. तो सबसे पहले काम क्या करना होता है कि आप अपने इनर वॉइस को जानिए, पहले समझिए, फिर उसको सुनिए, तब आपको अपने बारे में पता चलेगा. We will begin to gain self knowledge from self awareness. जागरूक होंगे तभी हम अपने आप के बारे में जान पाएंगे. जागरूक नहीं है तो कभी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर भी हम अपने बारे में नहीं जान पाएंगे. एंड तक सोचते रहेंगे कि हमने लाइफ में किया क्या है, क्या किया है. सिर्फ दूसरों की बुराई, दूसरों के बारे में ही सोचते रह गए. अपने बारे में सोचे ही नहीं, एकदम नहीं सोचे. अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं निकाले. दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कैसे आगे निकल गया, अरे वाह वो कैसे इतना खुश है, ऐसे खुश हो, इतना खुश कोई हो ही नहीं सकता, हम तो नहीं है इतना खुश, वो कैसे खुश है. इसी सोच में निकल देते हैं. इसी सोच में हम निकल जाते हैं कि दूसरे कैसे खुश हो जाते हैं, इतना छोटी छोटी खुशियाँ कैसे ला लेते हैं, हम तो नहीं हो पाते. तो अपने बारे में तब कैसे जानेंगे जब दूसरों के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं हम, है ना. तो पहले अपने बारे में जागरूक होंगे तभी अपने बारे में जान पाएंगे. फर्स्ट बी सेल्फ अवेयर, देन यू विल नो अबाउट योर सेल्फ. सो सेल्फ अवेयर इज अ की टू सक्सेस एंड इफेक्टिव फ्रेंडशिप. सक्सेस ऑफ इफेक्टिव फ्रेंडशिप, अपने से दोस्ती कीजिएगा तभी सक्सेस पाइएगा.
अगर आप अपने आप से दोस्ती नहीं किए हैं तो सक्सेस आपको मिलने से रहा, अच्छे से सक्सेस नहीं मिलेगा। अपने को पहले जानिए, ठीक है? अपने आप से दोस्ती कीजिए। दोस्त तो दुनिया में बहुत है आपके, बहुत दोस्त है, स्कूल फ्रेंड्स हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो बहुत है। लेकिन क्या आप अपने आप से कभी दोस्ती किए हैं? नहीं, अपने आप से आपने कभी दोस्ती नहीं किया है। तो अपने आप से दोस्ती करके देखिए। जब अपने आप से दोस्ती कीजिएगा तब आप अपने आप को जान पाइएगा और फिर आप एक सक्सेस लाइफ जी सकते हैं। We can gain self-awareness by 2 points. There are 2 points, that is by listening to ourselves in silence. Our heart can tell us who we are by, but what we think and how we act. हार्ट कुछ बोलता है, माइंड कुछ बोलता है, ठीक है? हार्ट कैन टेल अस हु वी आर, दिल आपको बता सकता है कि आप कौन हैं। What we think and how we act, हम क्या सोचते हैं और कैसे हम उसका रिएक्ट करते हैं, ये आपको हार्ट बताता है। दिमाग कुछ और बताता है। हार्ट और दिमाग कभी मैच नहीं करता है। दिमाग कुछ और सोचता है, हार्ट कुछ और सोचता है। अगर आप मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन है और आपको एक पार्टी में जाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत क्लोज फ्रेंड का है, तो ऐसे आपको पार्टी में जाना है, तो दिमाग बोलेगा नहीं तुम पढ़ो, तुम्हारा एग्जामिनेशन है। दिल बोलेगा आधे घंटे की तो बात है, आके फिर पढ़ाई हो जाएगी। दिमाग और दिल डिफर करता है ना? दिमाग बोलेगा यू हैव टू स्टडी बिकॉज इट इज एग्जामिनेशन, इफ यू विल गो देयर यू विल वेस्ट द टाइम। बट हार्ट विल टेल few minutes na, half an hour, after that you will come and revise the chapter, you enjoy, it will be relaxed for you also, relaxation for you। मतलब दिमाग बोलेगा पढ़ाई तो करनी है, एग्जामिनेशन है, जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। दिल बोलेगा अरे आधे घंटे की तो बात है, आके फिर रिवाइज हो जाएगी, रात भर पढ़ाई कर लेंगे। तो दिमाग और दिल कभी मैच होता ही नहीं है। बट आई हैव टू लिसन विथ ओपननेस, खुल के सोचना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा, काम तो करें, पढ़ाई भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचने पे। द नॉलेज दैट माई हार्ट गिव मी इज पर्सनल एंड ट्रू। नॉलेज जो हार्ट देता है वो पर्सनल होता है, वो ट्रू होता है। ऐसा नहीं है वो झूठ बोलता है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, दिल हमेशा सच बोलता है। तो जो नॉलेज दिल देता है वो पर्सनल होता है, उसको हम लोग छुपा के रखते हैं और वो सच होता है। इफ वी आस्क आवरसेल्फ द बेसिक क्वेश्चन हु एम आई विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड टेलिंग मी यू आर माई बिलव्ड चाइल्ड, यू आर यूनिक, यू आर अ गिफ्ट टू योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो एक वॉइस आएगा गॉड का, यही बोलते हुए कि तुम एक बहुत सुंदर बच्चे हो मेरे, बहुत अच्छा क्रिएशन हो मेरा, और तुम सबसे अलग हो। यहाँ हर इंसान अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। एंड यू आर गिफ्ट टू योर सेल्फ एंड अदर्स, तुम खुद के लिए एक गिफ्ट हो और दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी गिफ्ट हो और दूसरों के लिए भी गिफ्ट हो। तुम एक बहुत अच्छा क्रिएशन हो मेरा, तुम सबसे अलग हो और तुम अपने आप के लिए भी एक गिफ्ट हो और तुम दूसरों के लिए भी एक गिफ्ट हो। और दूसरा पॉइंट है बाय लिसनिंग टू व्हाट अदर्स टेल मी अबाउट माई सेल्फ। अपने अंदर की आवाज़ तो हम सुनेंगे ही, अंदर की आवाज़ हम सुनेंगे ही, अपने हार्ट की, माइंड की, सबकी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन दूसरे क्या बारे में हमारे बोल रहे हैं वो भी सुनना ज़रूरी है। अपने बारे में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के काम करेंगे, हमें अपने कमियों के बारे में भी जानने मिल जाएगा। हम जान पाएंगे हम कहाँ, मेरी अंदर कमी कहाँ पे है, तब हम वहाँ जाके सुधार कर पाएंगे। हम यहाँ इस जगह, इस फील्ड में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस फील्ड में हम थोड़े कमज़ोर हैं, हम वहाँ अपना ज़्यादा जोर लगाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में, दूसरों से अपने बारे में सोचेंगे तो सुनेंगे, तो कुछ हमें नेगेटिव ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा, पॉजिटिव कम सुनने को मिलेगा। लेकिन कैसे? अदर्स ऑल्सो टेल मी अबाउट myself, about my behavior and my good and not so good qualities, good and not so good qualities.
हमारे बिहेवियर के बारे में बोला जाएगा और हमारे कुछ अच्छे और कुछ बुरे क्वालिटीज़ में बताया जाएगा। दे गिव देयर ओपिनियन एंड वर्ड्स एंड समटाइम्स विदाउट वर्ड। कुछ बोल के बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ही रख लेंगे, अंदर ही बोलते रहेंगे ऐसा है, एकदम ख़राब है, क्या बोले इसके बारे में, अंदर ही बोलते रहेंगे अपने मन में। कुछ बोल के ही बोल देंगे, नहीं तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं करती हो, हाँ ये अच्छी आदत है तुम्हारी, लेकिन इसके अलावा तुम्हारा कोई अच्छा ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे। दे गिव देयर इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू एक्सेप्ट वॉट दे से। हमेशा आसान नहीं होता है अपनी बुराई को एक्सेप्ट करना। अगर कोई तुम्हें कुछ अच्छा ना बोले, सिर्फ तुम्हारी गलतियाँ निकालते तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें सुनना चाहिए ताकि हम अपने बारे में जान तो पाएँ, अच्छा हमें यहाँ कमी है तो हम यहाँ सुधार लेंगे, तो बाद में वही इंसान शायद हमें अच्छा बोलना शुरू कर दे मेरे बारे में। But I can come to know myself if I listen to them and see if what they say is true or not. लेकिन सुनना चाहिए ताकि हम ये जान पाए कि जो भी वो बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। जब तक हम नहीं सुनेंगे उनसे अपने बारे में, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। जो चीज़ वो बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। अगर हम अवॉइड करेंगे, नहीं सुनना ही नहीं है मुझे, वो तो सिर्फ बुराई करेगा, नहीं वो तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही बोलेंगे मेरे बारे में, तो वो आपका लॉस होगा। आपको अपने अंदर वॉइस तो पता चल गया, लेकिन क्या दूसरे बोल रहे हैं उसको भी अगर आप सुन लेंगे और उसको भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कमियों को जानने की कोशिश करके उसको सुधारेंगे, तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सेल्फ इज़ अ कॉम्प्लेक्स रियलिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सीधा साधा नहीं है, उसमें बहुत पेंच है, बहुत घुमाव है, और उसी घुमाव में ही आपको अपना लाइफ को कंप्लीट करना है, उसी घुमाव में ही चलना है, क्योंकि उसी घुमाव में चलते चलते ही आपको सीधा रास्ता मिलेगा। पहाड़ के रास्ते कितने घुमावदार होते हैं, फिर आता है ना स्ट्रेट भी आता है, पहले घूम घूम के ऊंचाई तक जाते हैं, तब जाके हमें अपना डायरेक्ट गोल मिलता है जहाँ हमें पहुँचना है। तो वैसे ही लाइफ में घूम घूम के ही जाते हम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे, सक्सेस पॉइंट पे पहुंचते हैं। जब तक हम घुमावदार रास्ते में नहीं घूमेंगे, तब तक हम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। इट मेंटेन्स इटसेल्फ इन वेरियस वेज एंड डिफरेंट सिचुएशन। वेरियस वे और डिफरेंट सिचुएशन में अपने लाइफ को लेके चलते हैं। बहुत रास्ते हैं जाने के लिए और बहुत सिचुएशन के साथ जाना पड़ता है। बहुत सारे सिचुएशन हमारी लाइफ में आते हैं, उसी से हमें गुजरना पड़ता है, और बहुत सारे रास्ते आते हैं, उसी रास्तों को चुनना पड़ता है। आई कैन बी एंग्री, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, मूडी एक्सेट्रा। हम दूसरे से प्यार, मतलब कि लविंग, हम बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं। एंगर होता है हमारे अंदर, गुस्सा भी होता है। अंडरस्टैंडिंग, और समझते भी हैं हम लोग, बहुत कुछ हम लोग समझते हैं, जो दूसरे बोलते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मूडी भी होते हैं, हमारा मूड अच्छा है कि ख़राब है, ये अपने पे होता है। सो इन डिफरेंट सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में हमारा मूड अलग अलग होता है, एक ही मूड नहीं होता है, अलग अलग मूड रहता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं, कभी बहुत गुस्सा होता है, कभी बहुत इरिटेटेड होते हैं। तो हर एक सिचुएशन में हर एक तरह का मूड होता है। A good personality is one that integrates all these qualities without any tension. अगर एक इंसान इन सबको अपने लाइफ में इंक्लूड करता है, एनी टेंशन के साथ, किसी टेंशन के साथ, तो वो अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। ठीक है, टेंशन के साथ लेगा तो वो कभी अपने लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो अपने लाइफ में ये सारे सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में लेके चलेगा, ठीक है, क्या है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन हमें लाइफ अच्छे से जीना है, अगर इस तरह से वो सोचेगा तो वो कभी लाइफ में फेल नहीं होगा, हमेशा सक्सेसफुल होगा, हमेशा वो खुश रहेगा, शांत रहेगा, पीस रहेगा उसके लाइफ में। अरे टेंशन क्या लेना, हो जाएगा काम। टेंशन लेके क्या करेंगे, टेंशन लेके काम खत्म हो जाएगा? नहीं, टेंशन लेके और टेंशन बढ़ेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेते हैं, लाइफ को इजी करते हैं, टेंशन को इजीली हैंडल करते हैं, तो वो टेंशन धीरे धीरे कम होगा और हम उस काम को आराम से कर पाएंगे।
हैप्पीनेस कम्स व्हेन आई बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ। खुशियाँ तभी आती है जब हम अपने आप से दोस्ती करते हैं। जब तक हम अपने आप से दोस्ती नहीं कर पाएंगे हम खुशियों को नहीं पा पाएंगे। खुशियाँ पाने के लिए हमें अपने आप से दोस्ती करनी पड़ती है। तो जब तक हम अपने आप से दोस्ती नहीं कर सकते तब तक खुशियाँ हमें नहीं मिल सकती। तो पहले आज से ही अपने आप से दोस्ती करना सीखो, तो देखो तुम हमेशा खुश रहोगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा तुमको। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो माई सेल्फ फुल्ली एट एनी गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट में जाके हम सब कुछ अपने बारे में नहीं जान पाएंगे, हमें उसके लिए पूरी लाइफ सोचनी पड़ती है। माई सेल्फ ग्रोज एंड इवॉल्व्स एज आई ग्रो फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। हमारा जो माई सेल्फ, हम जैसे ग्रो कर रहे हैं तो हमारी हर चीज़ ग्रो करती है। फिजिकली तो हम ग्रो करते ही हैं, साइकोलॉजिकली भी हम ग्रो करते हैं, थिंकिंग भी हमारी उसी तरह ग्रो करती है और इमोशंस भी उसी तरह आते हैं। बचपन में कुछ और ही सोच था, बचपन की सोच अलग सोच होती है। हम सबको अच्छा मानते थे, सबसे बात करते थे, सब कुछ हम जो भी करते थे तो अरे वो बच्चा है, नहीं समझता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी थिंकिंग पावर अलग होती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान होनी शुरू होती है। और अगर उसमें हम गलती करते हैं तब हमें बोला जाता है अरे बड़ी हो गई हो ना, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। इमोशंस अलग होते हैं, हमें कोई डांट देता है तो सबके सामने हम बच्चों की तरह रोना नहीं शुरू कर देते हैं, हम उसको सुनते हैं, फिर अंदर ही अंदर हमें थोड़ी तकलीफ होती है और अलग जाके हम उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। हम सबके सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई कर देता है लेकिन बहुत कोई नहीं कर पाता है। तो वैसे वैसे इमोशंस भी हमें चेंज होती है लाइफ में। द सर्च फॉर माई सेल्फ इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अपने बारे में खोज करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि गए खोज किए बता चल गया हो गया ख़त्म सब कुछ, नहीं। अपने बारे में जानने के लिए पूरी लाइफ लगती है। एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देर इज़ समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट माई सेल्फ। और एक स्टेज पे कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारे हर चीज़ में ग्रोथ आती है, वैसे वैसे हम हर एक चीज़ नया सीखते रहते हैं। और इसी नए सीख में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बुरे के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करने से गलत होता है, ये जानते हैं। अच्छे चीज़ के बारे में जानते हैं कि हमेशा इस चीज़ को करना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में कोई गलती ना कर सके। हर चीज़ के बारे में जानते रहते हैं हम। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में, हर एक स्टेज में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। Okay, so some questions are there. You can go through this question. Mainly these questions are when you are in the school, then only you can do. But you can go through these questions and see what you can do. Okay, moving back again one point is there. Self appreciation, खुद को शाबाशी देना। हम खुद को शाबाशी तभी दे पाएंगे जब हम अपने आप पे जान पाएंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तब तक हम अपने आप को शाबाशी नहीं दे पाएंगे। A little girl tiptoed to a tall priest and said something he could not hear. He bent very low and asked her to repeat what she had said. In a shrill voice, she asked, "What is the color of God's eye?" Without any hesitation, the priest replied, "Blue, just like yours." The girl ran back to her mother in great joy. छोटी सी लड़की बहुत लंबे प्रीस्ट के सामने जाती है और थोड़ा सा ऊंचा होके पैर उठा के उससे कुछ पूछती है, लेकिन प्रीस्ट को सुनाई नहीं देता है कि वो क्या बोली। तो प्रीस्ट थोड़ा झुकता है और फिर पूछता है कि तुमने क्या पूछा। व्हाट यू हैव आस्क्ड मी, आई कांट हियर, प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन। तो वो छोटी सी बच्ची फिर से वो क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द आईज ऑफ गॉड। भगवान के जो आंखें हैं वो किस कलर की है। तो प्रीस्ट बहुत ही आसानी से, किसी हेजिटेशन के बगैर वो आंसर बहुत आसानी से दे देता है कि प्रीस्ट की आंखें, गॉड की आंखें वैसी है जैसे तुम्हारी है, ब्लू। वो बहुत खुश होती है और दौड़ के अपनी मम्मी के पास चली जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गॉड वैसे ही है जैसे हम हैं। गॉड अलग नहीं है लेकिन हमने गॉड को अलग किया है। ठीक है, इसका मतलब गॉड जो हमें क्रिएट किए हैं, तो गॉड हम सबको एक जैसा मानते हैं लेकिन हमने सबको बांटा है। सेल्फ नॉलेज लीड्स टू सेल्फ एप्रिसिएशन। ग्रेजुअली वी कम टू रियलाइज दैट ईच वन ऑफ अस इज मेड ऑफ गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस।
सब कोई भगवान का ही एक परछाई है और भगवान की तरह भगवान से ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हमने बांटा है। He has filled us with talent and inner beauty. All of us are created to live lives which are fully human and fully alive. उन्होंने हमें बनाया है पूरे टैलेंट के साथ और इनर ब्यूटी के साथ। ऐसा नहीं है कि इंसान खूबसूरत है तभी वो इंसान अच्छा है। हो सकता है वो उतना सुंदर नहीं है लेकिन उसका मन सुंदर है। अगर वो इंसान मन से सुंदर है तो इंसान बहुत अच्छा है। अगर वो मन से सुंदर नहीं है, सिर्फ बाहर से सुंदरता है, नहीं, वो इंसान अच्छा नहीं है। मन सुंदर होना चाहिए, इनर ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए। इनर ब्यूटी अच्छी होगी तो इंसान अच्छा होगा। इनर ब्यूटी सबसे मेन होता है। चेहरा तो किसी का अच्छा किसी का बुरा होता ही है, लेकिन अगर इनर ब्यूटी बहुत अच्छी है तो इंसान बहुत अच्छा है। यहाँ सब आए हैं जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। और कैसे जीने के लिए? फुल्ली ह्यूमन फुल्ली अलाइव, जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान की तरह जीने आया है। और जो ऐसा नहीं करता है वो लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइफ में खुश हम तभी हो पाएंगे जब हम जिंदगी को जिंदा दिल इंसान की तरह जिएंगे। और ऐसे जीने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना होता है अपने से, अपने बारे में सोच के, अपने बारे में क्वालिटीज़ देख के। अगर इस तरह से हम अपने आप से दोस्ती करके करेंगे तभी हम एक लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। नॉलेज अबाउट सेल्फ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने बारे में जानने में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। व्हेन द नॉलेज इज पॉजिटिव वी गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब नॉलेज पॉजिटिव होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि तब हम बोलते हैं आई एम गुड, आई एम लव्ड। व्हेन नॉलेज अबाउट सेल्फ इज नेगेटिव, नेमली जब हम नॉलेज पॉजिटिव है तो हम बहुत अच्छे हैं, हमें सब कोई प्यार करता है। लेकिन जैसे ही नॉलेज नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है? आई एम यूजलेस, नोबडी लव्स मी। जैसे ही नेगेटिव हो गया तो हम यूजलेस है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको कोई प्यार नहीं करता है, हमारी लाइफ हेल है, ये है वो है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। वी बिकेम अनहैप्पी एंड आवर सेल्फ वर्थ बिकेम्स लो। हम दुखी हो जाते हैं और हमारा जो सेल्फ वर्थ है, जो जितना भी हम लोगों ने गेन किया है वो सब नीचे हो जाता है, लो हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम यूजलेस हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, है ना। सच अ पर्सन बिकेम्स इनवर्स, जेलस, मूडी एंड ग्रूमी। ऐसा इंसान जेलस हो जाता है, किसी से बात ठीक से नहीं करता है, अपने आप ही घुटता रहता है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता है, किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोच पाता है तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा। डीप एंड पॉजिटिव सेल्फ नॉलेज लीड्स टू सेल्फ अप्रिसिएशन। अपने बारे में अच्छे से जानेंगे तभी हम अपने आप को शाबाशी दे पाएंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, अपने आप से दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने आप को अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं है तो शाबाशी किस बात की देंगे। अगर हम अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, अपनी क्वालिटीज़ में सुधार लाएंगे तभी तो बोल पाएंगे चलो हमने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को थपथपाएंगे। लेकिन थपथपाने के वक्त ही नहीं आता है, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। जिस दिन हम अपने बारे में अच्छे से सोचने शुरू कर देंगे उस दिन हम अपने आप को शाबाशी देंगे, तब हम अपने आप को एक अच्छा इंसान मानेंगे और अब सबसे खुश इंसान मानेंगे कि हम सबसे खुश हैं। क्यों? तब हम अपने आप को जान पाए हैं। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द चैप्टर, सो योर ड्यूटी इज टू, if you purchase, please purchase the book. If you have purchased, then come page number 4. There is a question, write all that you know about yourself, that is positive and negative knowledge. You will do this, and when you have to make a ruled copy for your moral science, and in that you have to do all the question answer whatever. I will give you the PDF. First, in rough copy you just do this two points, that is positive and negative knowledge about yourself. You do this, and we will again move with a new chapter. Okay, and if you have any problem in this chapter, then please comment on the comment box. And class 7C especially, you have your
Google Meet for this moral science class on Tuesday, that is at 12 o'clock. Yeah, we have a Google Meet on that, and in that I will tell you more about that. And overall, I am telling you that if you have not purchased the book, please purchase the book and make a rule for copy for moral science, and whatever PDF I will send for the first chapter, please complete in your fair copy. So for today, thank you for the class. Stay home, stay safe.